السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ مہینہ ذی الحجہ شریف کا ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے، جس میں عظیم پیغمبر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی خلیل اللہ اور ذبیح اللہ علیہ السلام کی عظیم یاد قربانی کی بھی تازہ ہوتی ہے اس مہینے میں۔ چونکہ یہ مہینہ بالخصوص انہی دونوں پیغمبروں سے متعلق ہے اور ان کی عظیم یاد قربانی سے متعلق ہے، تو قربانی کے حوالے سے کچھ میں ضروری باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ ان مسائل سے واقف نہ ہوں تو کچھ جانکاری مل جائے۔ اور ضروری گزارش یہ ہے کہ ان باتوں کو بالخصوص قربانی کرنے والے حضرات یاد رکھیں اور اپنے احباب تک بھی ان مسائل کو پہنچائیں۔ قربانی ہے کیا؟ علماء فرماتے ہیں قربانی اسلام کا ایک اہم حکم ہے جو ذی الحجہ کے 10 اور 11 اور 12 تاریخ کو انجام دیا جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اور اس کا بنیادی مقصد قربانی کا یعنی قربانی کی نیت گوشت کھانے کی نہ ہو۔ یہاں ایک بات ضروری سمجھ لے، ایک مسئلہ کہ جیسے حصے والی قربانی ہوتی ہے، بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، مگر علماء فرماتے ہیں ان میں سب کی نیت قربانی کی ہو، کسی ایک کی بھی نیت اگر اس میں گوشت کھانے کی صرف رہی تو یاد رکھیں ان میں سے کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ سب کی نیت قربانی کی ہو، اور اسی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقوی کا حصول ہے۔ اگر ایک نے بھی یہ نیت کر لی نا شرکت والی میں کہ چلو گوشت آ جائے گا کھانے کا، گھر میں ہو جائے گا، ایسے بھی تہواروں میں خرید کے کھاتے، تو اگر ایک کی بھی نیت صرف گوشت کھانے کی ہوئی، قربانی کی نیت نہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کریں گے یا اس کی فرما برداری پر لبیک کہتے ہوئے یہ میں قربانی کر رہا ہوں، سنت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیگی ہے، تو اگر ایسی نیت نہیں ہوئی، صرف گوشت کھانے کی ہوئی، تو اس میں سے کسی شخص کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے چھوٹے جانور لیا کسی شخص نے جس میں ایک شخص کا واجب اتر سکتا ہے، ایک ہی آدمی کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے، اور اگر اس نے بھی صرف یہ نیت کی کہ گوشت کھانے کا ہو جائے گا، قربانی کی نیت یعنی اللہ کی رضا پانے کی نیت نہ ہو، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے چونکہ حدیث میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، سرکار کا فرمان ذیشان ہے کہ ایک مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والے حضرات اپنی نیتوں کو خالص رکھیں۔ خالص یہ کہ اس کی نیت یہ ہو کہ قربانی میں اللہ کی رضا پانے کے لیے اور سنت ابراہیمی کو اپنانے کے لیے کر رہا ہوں، اس ذریعے سے میرے پیغمبر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوگی اور اللہ کی فرما برداری ہوگی اور اللہ کی رضا کا حصول ہوگا۔ ٹھیک، قربانی کس پر واجب ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہم دیکھیں کہ سماج میں، معاشرے میں تو بہت مسلمان ہیں، تو کیا ہر شخص پر قربانی واجب ہے؟
तो इसका जवाब ये है कि नहीं, हर शख्स पर वाजिब नहीं। कुर्बानी वाजिब किस पर है? साहिब निसाब पर, मालिक निसाब पर। और मालिक निसाब, साहिब निसाब कौन है? हर वो आकिल बालिग मुकीम और मुसलमान मर्द या औरत जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उस मालियत की जरूरियात से जायद नकद रकम सामान या माल तिजारत मौजूद हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। गौर किया आपने? किन लोगों पर है? आकिल बालिग मुकीम और मुसलमान मर्द औरत। यानी नाबालिग की तरफ से कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर कोई पागल हो गया है, अक्लमंद नहीं है, मजनून है, पागल है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। और कोई मुसाफिर है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। अपने इलाके में हो, मुकीम हो, अपने घर में, अपने एरिया में हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। साहिब निसाब, हर वो साहिब निसाब जो आकिल बालिग मुकीम और मुसलमान है। मुसलमान में मर्द औरत भी है। ये नहीं कि मर्द ने अपने तरफ से, अपने घर से एक मर्द ने कुर्बानी अदा कर दी तो कुर्बानी सबकी तरफ से हो गई, ऐसा नहीं है। अगर अलग से औरत मालिक निसाब है, अपने जेवरात के हिसाब से, उसके जेवरात जो पहनती हैं वो, या बनवा कर रखी हुई है, 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच रहे हो, या जेवरात 7.5 तोला सोना हो, तो अलग से अलाहिदा तौर पर औरत पर कुर्बानी वाजिब है। ठीक है, तो साहिब निसाब आप समझ गए। कौन से साहिब निसाब? हर वो आकिल बालिग मुकीम और मुसलमान जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उस मालियत की ज़रूरत से जायद नकद या सामान तिजारत मौजूद हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। मुसाफिर और मकरूज, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इसी तरह अगर किसी पर इतना कर्ज हो कि उसे निकाल कर निसाब बाकी ना बचे, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं। एक आदमी मालदार है, माल है उसके पास, मगर कर्ज भी है, और कर्ज इतना है कि अगर कर्ज को वो चुकाएगा तो फिर वो मालिक निसाब नहीं रहेगा, तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ, कर्जदार ने कुछ मोहलत दी है कि भी आराम से तुम मेरे कर्ज को चुका दो, तो फिर वो कुर्बानी अगर नफली एतबार से करेगा तो उसकी कुर्बानी नफली तौर पर कुर्बानी हो जाएगी, सवाब मिलेगा, मगर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इसी तरीके से कोई साहिब निसाब तो है, मालदार है, पैसे वाला भी है, मगर वो मुसाफिर है, कहीं सफर पे गया हुआ, सफर शरी है, और 15 दिन से कम उसको वहां रुकने का इरादा है, यानी वो मुसाफिर शरी है, तो उस पर सफर की हालत में कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर वो अपने इलाके में होता, अपने घर में होता, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती। तीसरी बात, कुर्बानी के जानवर और उसकी उम्रें कितनी होनी चाहिए। बहुत लोग अनजाने में सिर्फ तगड़ा तंदुरुस्त देख कर ले आते हैं, या कमजोर कम पैसे में देखकर, कम पैसे में मिल रहा है साहब जानवर, चलो ले आओ। यहाँ ये भी आपको गौर करना है, कुर्बानी के जानवर के लिए कुछ शर्तें हैं। आम सदका जो होता है, सदक़े नाफिला, नफली सदक़े में आप जान का सदका निकाल रहे हो अपने मरीजों के, तो उसमें उम्रें नहीं देखी जाती है कि जानवर की उम्र कितनी है। आपको जो मैसर आया, आपने बकरी बकरा खरीद कर उसको जान का सदका दिया, उसमें उम्र नहीं देखी जाती, क्योंकि वो नफली सदका है। मगर कुर्बानी सदका वाजिबा है, कुर्बानी वाजिब है, तो इसके जानवर की भी शर्तें हैं। जानवर के अक़साम, ऊंट, भैंस, भेड़, बकरी और दुम्बा की कुर्बानी जायज़ है। उम्र की हद क्या है? बकरी दुम्बा कम अज कम 1 साल का हो, छोटे जानवर
बकरी दुम्बा कम अज कम 1 साल का हो, और बड़े जानवर जैसे भैंस पाड़ा वगैरह 2 साल का हो। उससे बड़े जानवर जैसे ऊंट, उसका 5 साल का होना जरूरी है। भेड़ या दुम्बा अगर 1 साल से कम उम्र का हो, भेड़ या दुम्बा, बकरी नहीं, भेड़ या दुम्बा 1 साल से कम उम्र का हो, लेकिन इतना फरबा मोटा सेहतमंद हो कि देखने में 1 साल का मालूम होता हो, तो उसकी भी कुर्बानी जायज है। दुम्बा और भेड़, बकरी नहीं, बकरा नहीं, भेड़ या दुम्बा। कुछ किताबों में सिर्फ दुम्बा का जिक्र है, क्योंकि वो दुम्बा जन्नत से उतारा गया था, जिसकी कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इस्माइल की जगह की थी। उस दुम्बे की बात हो रही है, दुम्बा जानवर। भेड़ या दुम्बा 1 साल से कम उम्र का है, यानी 10 महीने का है, 11 महीने का, 8 महीने का, यानी 6 महीना प्लस हो। क्योंकि 6 महीने से नीचे होगा या 6 महीने का होगा वो पता चल जाएगा, लाख तगड़ा तंदुरुस्त हो, मगर 6 महीने से कम का होगा तो वो पता चल जाएगा कि भाई साल भर का नहीं, 6 महीने से कम का है। ठीक है। भेड़ या दुम्बा अगर 1 साल से कम उम्र का हो, लेकिन इतना मोटा सेहतमंद हो कि देखने में 1 साल का मालूम होता हो, तो उसकी कुर्बानी भी जायज है। तीसरी बात, कौन से जानवर की कुर्बानी, कौन से जानवर कुर्बानी के काबिल नहीं होते हैं, किस जानवर की हम कुर्बानी नहीं दे सकते। उसमें फुका फरमाते हैं, अंधा या काना जिसकी एक आंख की बीनाई खत्म हो गई, नुक्स वाला जानवर। अंधा या काना जिसकी एक आंख की बीनाई खत्म हो गई। अंधा तो दोनों आंख का अंधा होता है, मगर काना एक आंख का होता है, तो कहते हैं अंधा या काना, काना जिसकी एक आंख की बीनाई खत्म हो गई, उस जानवर की भी कुर्बानी नहीं हो सकती। जो जानवर लंगड़ा हो और अपने पांव से चलकर ज़िबह की जगह तक ना जा सकता हो, इतना लंगड़ा हो कि उसको चलाने के लिए किसी की मदद की जरूरत हो, कोई उसको पकड़ कर ले जाए तब वो जा सकता हो, तो ऐसे लंगड़े जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। जिसका कान या दुम 1/3 से ज्यादा कटा हो, मसलन ये दुम है, एक हाथ को आप दुम समझिए, ये दुम है, इसके 3 हिस्से करो, 3 भाग करो, तो अगर दुम का 3 में से 1 हिस्सा कटा हो, 1/3 से ज्यादा कटा हो, यानी 3 हिस्से में से 1 हिस्सा और उससे ज्यादा कटा हो, 1/3 से ज्यादा कटा हो, उस जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। फिर फरमाते हैं, जो बहुत ज्यादा कमजोर या लागर हो, जिसकी हड्डियों में गूदा ना बचा हो, भले साल भर का है जानवर, बकरा, दुम्बा या मेंढा, ठीक है, या बड़े जानवर, एज उसकी पूरी हो रही है, उम्र उसकी पूरी हो रही है, जैसे ऊंट 5 साल का बताया गया, बड़े जानवर जैसे बड़े जानवरों में भैंस वगैरह, पाड़ा वगैरह 2 साल की उम्र का है, या छोटा जानवर बकरी, बकरा, दुम्बा, भेड़, ये सब 1 साल का तो है, मगर इतना कमजोर है, इतना लागर है कि जिसकी हड्डियों में गोश्त बाकी नहीं है, गूदा बाकी नहीं है, इतना हल्का कमजोर जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। लोग पैसा बचाने के लिए बिलखुसूस हिस्से वाली कुर्बानियों को जो अंजाम देते हैं, उनमें वो ऐसे जानवर लाते हैं, बचना चाहिए। क्योंकि हदीस में सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, सम्मिनु दहायाकुम फ़इन्नहा अलस्सिराती मतायाकुम, तुम अपने कुर्बानी के जानवरों को मोटा करो, तगड़ा करो, तंदुरुस्त करो, क्यों? फ़इन्नहा अलस्सिराती मतायाकुम, कि इसलिए कि ये कुर्बानी के जानवर कल क़यामत के दिन पुलसिरात पर तुम्हारे लिए सवारी बनेंगे। जो इतना कमजोर हो जानवर, जो खुद अपना बोझ ना उठा पाए, जो खुद चलकर ज़िबा कुर्बान गाह तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो पुलसिरात से आपको कैसे पार करेगा। अच्छा, एक इंसानियत के नाते हम जानवर की कुर्बानी अल्लाह के हुक्म से देते हैं,
मगर चूंकि इंसान है, हमारे अंदर भी रहम है, तो रहम खाते हुए इस बात पर कि इतने कमजोर जानवर जो खुद ही मरा हुआ पहले से, तो उसको क्या कुर्बान करेंगे। तो रहम की बुनियाद पर भी ऐसे जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है जो बहुत ज्यादा कमजोर लागर बीमार हो। ठीक है। एक और बात कि जिसके पैदाइशी तौर पर सींग ना हो या टूटे हुए हों, लेकिन अगर जड़ से उखड़ गए हों तो जायज नहीं है। जो जानवर पैदाइशी तौर पर जिसके सींग नहीं मगर या सींग है मगर टूटे हुए जड़ से उखड़ गए हैं, तो ऐसे जानवरों की भी कुर्बानी जायज नहीं है। ठीक है। अच्छा, और चौथी बात, ज़िबह के अहकाम, अहम अहकाम क्या है। कुर्बानी के दिन, कुर्बानी जिलहिज्जा की 10 तारीख यानी ईद उल अजहा से शुरू होकर 12 तारीख की शाम तक की जा सकती है। 10वीं जिलहिज्जा से 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 3 दिन अय्यामे कुर्बानी है। 10वीं जिस दिन हम ईद उल अजहा की नमाज पढ़ते हैं, 10वीं जिलहिज्जा से 12वीं की शाम तक यानी गुरूब आफ्ताब से पहले पहले तक कुर्बानी की जा सकती है। उसके अलावा ये जो 3 दिन गुजर गए, फिर किसी को ऐसा लगा कि मैं कुर्बानी करूंगा, तो याद रखें वो कुर्बानी नहीं होगी। हिस्सेदारी, ऊंट और गाय जैसे बड़े जानवर में ज्यादा से ज्यादा 7 अफराद तक शिरकत जायज है, बशर्ते किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो और सबकी नियत कुर्बानी या अकीका की हो। बड़े जानवर में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, मगर शर्त है उसमें कि 100 ग्राम की भी गोश्त में कमी ना हो, सबको बराबर हिस्सा मिले।